Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the platform Learn with Sharia. Dear viewers, in this session I'll be talking about article and its usages with either common nouns or proper nouns. Primarily a few people are asked that what is the function of an article or what is an article lexically. So lexically, grammatically, article functions as an adjective. How is an adjective? Because they are words used to modify a noun, and then more specifically they are used before either common nouns or proper nouns. Identify noun is being specific or unspecific. From within the article used with any noun, we come to know that whether that noun is specific or unspecific. How? इस example को देखें. After I have written अगर इस सेंटेंस को मैं इस तरह प्रोनाउंस करूंगा, if I have to utter this sentence in this way, that after a long day a cup of tea tasted good. It could be any day and any cup of tea could have tasted good. But if I am using over here this the, जिसको दी कहते हैं normally the, if I utter this sentence in this way, after the long day the cup of tea tasted good, then it becomes specific. अब यहाँ पे यही nouns थे common जिनको मैंने specific बनाना चाहा. अब जहाँ पे the use होगा तो इसका मतलब कि मैं किसी ऐसे दिन के बारे में बात कर रहा हूँ which is already known to the other speaker. Somebody who is being told this thing that after the long day the cup of tea tasted good. It actually means that the other speaker already knows about that specific day and that specific cup of tea as well. So that is why जहाँ पे हमने specific बनाना होगा तो वहाँ पे the use होता है, and जहाँ पे unspecified होते हैं तो वहाँ पे हम a या in use करते हैं. अब articles should always precedes a noun within a sentence. किसी भी sentence में noun से पहले article का होना necessary है. अब article को अगर divide किया जाए into different types, तो there are two types of articles basically. First one is definite indefinite article and the second is definite article. Indefinite articles में से फिर दो हैं, a and n. A and n are indefinite articles and while the is definite article. अब a और n indefinite article की अगर use की बात की जाए, so it is used with a noun which is common, countable and singular. A और n जो कि indefinite articles हैं, they are used with a noun which is common, which is countable and which is singular as well. While on the other hand, we use definite article the with proper nouns. हम proper nouns से पहले article the को use करते हैं which is definite article, जबकि a और n indefinite articles हैं which are used with nouns which are singular, countable and common as well. अब अगर usages of a और n यानी indefinite article की बात की जाए which are two in number, a और n, इनके अगर यूजेज की बात की जाए so सबसे पहले इस रूल को देखते हैं that a will be used with a word, a noun which is common, countable, singular और जो कि start होगा consonant sound से. इसी तरह n को हम यूज करेंगे with a noun which is common, countable and singular and it will get start from a vowel sound. अब यहाँ पे एक misconception usually पाई जाती है and from these examples I hope I may clear that misconception. Misconception क्या है? For example मैंने कहा कि जहाँ पे consonant sound होगा तो वहाँ पे हम definite indefinite article में से a यूज करेंगे, अगर वाल साउंड होगा तो हम n यूज करेंगे. अब इन सेंटेंसेस को देखें. अब यहाँ पे the sound is what? Consonant है तो यहाँ पे मैं कहता हूँ I have a book. इसी तरह अगर यूनिवर्सिटी को देखा जाए, it is starting from a vowel letter but the sound is not of a vowel, so that is why a is placed over here as well. लेकिन अगर मैं अम्ब्रेला को देखूं तो अगर इसके साउंड की बात की जाए, दो द स्टार्टिंग लेटर इज अ वॉल तो यहाँ पे एन आ जाएगा. अब यहाँ पे एक रूल क्या है दैट यहाँ पे आपने किसी भी वर्ड की ट्रांसलिटरेशन करनी होगी.
रिमेंबर देयर आर दीज टू टर्म्स, वन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हम एक वर्ड की उर्दू मीनिंग को लिखते हैं, वाइल इन ट्रांसलिटरेशन जिस तरह हम मैसेजेस में कन्वर्सेशन करते हैं उसी तरह हम यहाँ पे ट्रांसलिटरेशन करेंगे किसी भी वर्ड की। आपके सामने कोई भी वर्ड आए, जैसे कि बुक है, तो बुक को ट्रांसलिटरेटेड फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। मैं किताब नहीं लिखूंगा, मैं अपने माइंड में अपने साथ उर्दू में इस तरह उसको ट्रांसलिटरेट करूंगा। इसी तरह द सेकंड वर्ड इज यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी को देखें ट्रांसलिटरेशन में इस तरह लिखी जाएगी। एंड इफ आई टॉक अबाउट अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला की ट्रांसलिटरेशन इस तरह आ जाएगी। अब द टेक्निक इज कि जिस भी वर्ड की ट्रांसलिटरेटेड वॉइस आपके साथ अलफ से स्टार्ट हो तो उनसे पहले आपने ए एन यूज करना है। एंड इफ इट इज नॉट स्टार्टिंग विद अलफ साउंड तो उन सब के सामने आपने ए प्लेस करना होगा। दोबारा से सुने, दोज साउंड्स, दोज नाउन्स जिनको आप ट्रांसलिटरेट करें, अगर वो आपके साथ अलफ साउंड देते हैं ट्रांसलिटरेटेड वर्जन में, जिस तरह के अम्ब्रेला अलफ साउंड से है तो इसीलिए मैंने ए एन लगाया है, जबकि यूनिवर्सिटी एंड बुक, अब इनको चेक करें, दे आर नॉट स्टार्टिंग विद दिस अलफ साउंड, सो दैट इज व्हाई आई प्लेस आर्टिकल ए ओवर हियर। द सेकेंड रूल इज कि अगर किसी भी नाउन से पहले एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आ जाए तो उन कंडीशंस में हम नाउन्स को देखेंगे या फिर उन एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स की साउंड्स को देखेंगे। So such conditions where an adjective or adverb is placed before a noun, in those conditions we have to look at the voice, the sound of the adjective or adverb। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि he bought blank expensive chair, अब एक्सपेंसिव को अगर आप ट्रांसलिटरेटेड वर्जन में लिखेंगे तो ये एडजेक्टिव है जो कि इस नाउन चेयर के लिए यूज हुआ है। अब इसी एक्सपेंसिव को अगर आप ट्रांसलिटरेट करेंगे तो ये आपके साथ अलग साउंड देगा, तो यहाँ पे मैं आर्टिकल यूज करूंगा एन। इसी तरह इंटरेस्टिंग को दोबारा से क्लास नाउन है, उसको मॉडिफाई करना है, एडजेक्टिव है, तो इससे पहले भी एन इंटरेस्टिंग आ जाएगा। एंड इफ आई से Catherine was immensely popular lady, अब immensely is an adverb, popular again is an adjective and lady is a noun। तो यहाँ पे इस adverb के sound को हमने देख के ही इनके साथ आर्टिकल यूज करना होगा। द रूल इज कि अगर किसी भी noun से पहले there is any adjective or any adverb, we will have to look at the sound that that adjective or adverb carries, and if that carries a love sound, we will have to use and with it, and if it is not starting with an alaf sound, so we are supposed to use an article a with them। अब the next rule is कि n use होगा with consonant sound, those words which starts from a consonant letter, जैसे कि honorable, जैसे कि honest, जैसे कि are। अब इन सबसे पहले आपके साथ आर्टिकल क्या आएगा? n आएगा। अब n यहाँ पे अगर चेक करें, ये स्टार्ट हो रहा है consonant letter से, but it is not starting, actually this letter is silent। तो जहां पे consonant sound आपका start वाला silent है, so it is start with honorable। honorable को इसी तरह आप दोबारा से transliterate करेंगे, so you will come to know that it starts from alaf sound। तो इसलिए हम उससे पहले भी क्या यूज कर रहे हैं? n यूज कर रहे हैं। इसी तरह the next rule is कि an should be used with abbreviation। अब abbreviation के साथ कैसे? abbreviation में आपने ख्याल किस चीज का रखना होगा? If the thing is an abbreviated form, तो आपने उसको भी अपने माइंड में ट्रांसलिटरेट करके उसको कलेक्टिव एक साउंड की तरह प्रोनाउंस करके उससे पहले आर्टिकल प्लेस करना डिसाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस को देखें, ब्लैंक सोसाइटी ऑफ राइटर्स मेंबर्स वाज quoted in the article। अब यहाँ पे आप सोसाइटी ऑफ राइटर्स इनको कलेक्टिवली चेक करें, सो इट स्टार्ट्स विद दिस सो साउंड, सो यहाँ पे आ जाएगा ए, बिकॉज अलग साउंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे चेक करें SOW, अगर इसी फॉर्म ऑफ वर्ड्स को यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को मैं एब्रिविएटेड फॉर्म में लाऊं तो उनसे पहले फिर क्या आएगा? अगर इसको मैं कहूँ आप SOW, तो यहाँ पे आ जाएगा एन इनके साथ आ जाएगा
SOW, अगर इसको आप उर्दू में लिखेंगे यानी ट्रांसलिटरेटेड फॉर्म में, सॉरी उर्दू में नहीं, ट्रांसलिटरेटेड फॉर्म में, SOW, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप चेक करें दोबारा से अलग साउंड से है, तो यहाँ पे AN शुड बी देयर। सो व्हाइल अगर आपके सामने कोई एब्रिविएटेड केस आ जाए तो उसमें आपने ख्याल ये रखना होगा, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वहां पे चेक करना होगा जो उनसे पहले वर्ड्स हैं, नाउन से पहले। लेकिन अगर आपके साथ एब्रिविएटेड फॉर्म में आता है तो फिर आपने उसी को ट्रांसलिटरेट करके कलेक्टिवली प्रोनाउंस करके उनसे पहले आर्टिकल प्लेस करना, डिसाइड करना होगा। The next rule is that there should be no article with plural countable nouns. अब plural countable nouns कौन से हैं? For example, if I say children, अब children is plural, but this noun is countable as well. इसी तरह अगर मैं कहूँ computers, अब computers is plural, but साथ में ये countable भी है, तो इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आ सकता। ओनली इन स्पेसिफिक केसेस वी यूज आर्टिकल द विद देम, यानी डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड विद देम इन स्पेसिफिक केसेस। और वो कौन से केसेस हैं वो हम जब डेफिनेट आर्टिकल द की यूजेस डिस्कस करेंगे। सो आई विल लेट यू नो अबाउट इट्स यूजेस। अब नेक्स्ट रूल इज के ए विद नॉइज। अब नॉइज इज बेसिकली एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है, बट इट इज इन एक्सेप्शनल केस के जहां पे भी आपको नॉइज दिख जाए एज अ नाउन तो उससे पहले आपने ए लगाना होगा हमेशा के लिए, अदरवाइज नो, यानी इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। लेकिन यहाँ पे नॉइज इज ओनली एक्सेप्शनल केस के जहां पे अनकाउंटेबल नाउन है एंड स्टिल वी यूज आर्टिकल यानी इनडेफिनिट विद इट। अब देयर आर सम स्पेसिफिक नाउन्स जिनको जो कि अनकाउंटेबल भी हैं और अपेरेंटली वो सिंगुलर नजर आते हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ आर्टिकल विद देम, यानी अपेरेंटली सिंगुलर है। अगर इंफॉर्मेशन को देखा जाए, एयर, पोइट्री, एडवाइस, फर्नीचर, लेकिन इनके साथ कोई भी आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। Why? Because they are uncountable in nature. इसी तरह sugar, water. अब I hope these usages are clear to you. In the next session, I'll be discussing the uses of definite article